information emerging on the Amravati murder, and sources tell us that the first attempt to kill the Amravati chemist Umesh was on the 20th of June. Umesh Kole was a part of a WhatsApp group called Black Freedom, and this group had a mix of Hindu and Muslim members. He made some religious comments on Black Freedom supporting Nupur Sharma, and one member pasted his message on another WhatsApp group, and the members of this other WhatsApp group apparently got upset, and that is what happened in the background of this horrific murder that we saw in Amravati. Now, to get more details on this, we have Anurag. Anurag, what is the latest update that you can share with us on these WhatsApp details that have now emerged? Yes, but first of all, let me tell you that the accused are still inside the Kotali police station, and a team of NIA led by the senior officials of the NIA are still inside because they have to produce the accused before 8th of July in Mumbai NIA court. So they're still inside. Any moment they can come out with those accused. And yes, the first attempt to kill the Amravati chemist Umesh Kole was made on June 20th, a day before his throat was slit by two men in a crime chillingly similar to what has happened there in Udaipur. He was attacked and killed by two men on motorcycle on his way back from his medical shop on June 21. But the sources are saying that the killers had made their first attempt on the previous day, that is on 20th. But he was spared on that day because he closed up early around 9:30 p.m. They did a recce on him for close to a week before killing him on 21st. The killers having, as I said, racket the shop earlier, had expected him to shut his shop on 20th also at around 10:30 p.m. And but the next day he was killed when he closed the shop at around 10:30 p.m. and he was on way back to his home. On the WhatsApp chat, Mr. Kolhe had made some religious comments in support of Nupur Sharma, and the post was shared by his friend and a customer also for a long time, Dr. Yusuf Khan, a veterinary doctor, to other WhatsApp groups. And listen to what his brother, Umesh Kolhe's brother, had told NDTV a few hours back. कभी कहीं ऐसा लगा कि कोई खतरा है घर पे या भाई साहब पे? कभी उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र किया था 21 जून से पहले? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं हुई और कभी वो ऐसे टेंस भी नहीं दिखे कि कैसे उनके कुछ कॉल्स आ रहे या ऐसा आ रहे, तो ऐसा लगा नहीं कभी कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। कभी आप लोगों ने उनसे कहा कि चूंकि एक बात आ रही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था कोई ब्लैक फ्रीडम, उसके सदस्य थे और उन्होंने कुछ नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किए थे, तो कभी आपको पता लगा, कभी आपने उनको मना किया? क्या आप भी उस ग्रुप के मेंबर थे? आपने देखे उनके पोस्ट को? नहीं, मैं उस ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ और मैंने कभी ये पोस्ट देखे नहीं थे और हमें मालूम ही नहीं थे कि इस टाइप के कुछ पोस्ट भी वो फॉरवर्ड कर लेते करके, तो हमें पता ही नहीं था इस बारे में कुछ भी। अलग तरीके की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था, उनका कोई रोल नहीं है। कुछ लोग उनको मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पुलिस कह रही है ऑफ द रिकॉर्ड कि वो मास्टरमाइंड नहीं है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड हो भी सकते हैं। आप, चूंकि आपका परिवार उनसे कुछ सालों से जुड़ा हुआ था, आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज की होगी? आप क्या समझते हैं? मास्टरमाइंड तो पुलिस वाले किसी और को बोल रहे थे। अभी एग्जैक्ट अंदर कैसा ये हुआ, किसको फॉरवर्ड हुए और क्या हुआ, ये बहुत बोलना मुश्किल है। लेकिन मास्टरमाइंड तो नहीं बोल सकते क्योंकि जो आदमी कुछ बिजनेस कर रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, तो मास्टरमाइंड उसको एकदम से नहीं बोल सकते। और ऑलरेडी मास्टरमाइंड करके इरफान नाम का कोई शख्स ऑलरेडी पुलिस वालों ने बोला है कि वो मास्टरमाइंड था। आपको भी लगता है उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया होगा? हो सकता है फॉरवर्ड, हाँ टर्म्स रहे हैं तो फॉरवर्ड किए होंगे मैसेज ये सब किसी और को, और हो सकता है किसी और ने वो सब ये किया हो या इन्होंने भी किसी को किया हो। तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है, अभी वो पूरा आ जाएगा सामने मामला तो फिर पता चलेगा। एक बात सामने आती है कि 21 तारीख को उनकी हत्या हुई है और उसके कुछ दिनों बाद उदयपुर में एक शख्स की हत्या हो जाती है। यहाँ पर महाराष्ट्र में पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदल जाता है और उसके बाद ये बात सामने आती है कि नूपुर शर्मा के पोस्ट की वजह से यहाँ पर भी एक हत्या हुई है। क्या आप लोगों को इस तरह का कोई अंदेशा था? पुलिस ने कभी इस तरह से बताया हो आप लोगों को, या आप लोगों ने उनके मोबाइल को देख करके पुलिस को कुछ बताया? ये बात पहले कहीं थी क्या? भैया का मोबाइल तो सेकंड डे ही पुलिस ने जब्त कर लिया था। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा प्रूफ भी हो सकता है और उन्हें भी जानकारी निकालनी थी। सेकंड वेव तक के भी हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। एक तो जिसकी किसी के साथ में दुश्मनी नहीं हो सकती उसको कैसे कोई मार सकता, और उसका नेचर हमें मालूम था कि वो बहुत शांत नेचर का है, किसी से झगड़ा नहीं करता है।
इवन किसी ने झगड़ा किया तो भी बात नहीं करता है उस पे ज़्यादा। तो इस वजह से हमें मालूम था कि झगड़ा होके ये होना तो पॉसिबल नहीं है और जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है कि सीधा आके चाकू घोंप के चले गए, तो ये भी आइडिया थी कि किसी ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, ना कुछ छीना-झपटी हुई, ना कुछ हुआ। तो ये भी आइडिया थी कि ये रॉबरी तो नहीं हो सकती। तो हम लोग भी परेशान हो गए थे कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये हुई। आप पुलिस की जाँच से खुश हैं क्योंकि अब मामला एनआईए के पास भी चला गया है। तो अब जो भी अगर आतंक के तार जुड़े हैं वो एनआईए जाँचेगी। बट बहरहाल जब जो प्रोग्रेस थी क्योंकि आप कह रहे हैं कि दूसरे दिन अरेस्ट हो गया था तो आप खुश थे पुलिस की जाँच हाँ, में? काफ़ी क्योंकि देखिए अरेस्ट बहुत फ़ास्ट होना शुरू हो गया था और उनका काम भी शुरू हो गया था। सभी के लिए पीसीआर निकल गया था और उनका बाकी काम चल रहा था। मेन कैसा है कि वो हमारी सिक्योरिटी को लेके भी ध्यान रख रहे थे। हमने कभी डिमांड नहीं की कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन 3rd-4th डे से ही शायद हमारी जो दुकान ओपन हो गई तो दुकान के लिए उनकी सिक्योरिटी हो गई। रात को जब भी बच्चे घर पे आते थे तो पुलिस की वैन घर तक के छोड़ने आती थी।